Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today I am going to solve question number 2 of chapter 3 of secretarial practice, obviously 12th commerce. आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हैं. ऑल टुगेदर देयर आर 20 क्वेश्चंस. ओके, और ये हमने न्यू पेपर पैटर्न में देखा है कि ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स है या टर्म्स हैं, ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है. ओके, एनी 2 आउट ऑफ 4 और दे विल गिव यू बट यू हैव टू राइट ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, तो बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि हम ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू, एक्सप्लेन यू बेसिकली हाउ टू राइट इट एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट फॉर श्योर. लेकिन आपको ये धीरे से समझना होगा, और जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपका ये रिवीजन भी हो जाना चाहिए कि ये जो 10 कंसेप्ट्स है, आई एम टू से द फर्स्ट 10 कंसेप्ट जो है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो चिल्ड्रन, 1 to 10. क्योंकि I assume that too much of loading together doesn't give you any output. तो इसके वजह से हम ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, उसको जानेंगे, उसको कैसे हम लिख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से. इवन इट इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, हाउ टू गेट मैक्सिमम 2 मार्क्स. ओके, सो वो सब हम डिस्कस करेंगे. So without delaying much students, let us start with solving the exercise number 2 under chapter 3, that is from 1 to 10 in this video. मैंने एक लाइन भी वहां पर ड्रॉ किया है in between, in the middle, so that 11 to 20 part 2 of this particular section of question will be uploaded very soon. क्योंकि I just want you people to get prepared with the first 10 concepts. ठीक है, so let's begin children. क्वेश्चन नंबर 1 to 10, आप आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख ही सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन फॉर श्योर, बट येस 2.1 2.2 आई एम गोइंग टू असाइन द नंबर्स टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी प्रॉपर वे, आप बोल सकते हो. सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज transmission of shares, and if I am not mistaken we have already studied about transmission of shares, है ना. So chalo let's begin. Okay, now students see, this is a 2 marks question. Obviously transmission of shares का मतलब क्या है and what you have to write. So first you have to write the meaning of transmission of shares. Okay, if you want to write little bit about share, it's like small divisible unit of the share capital, थोड़ा सा उसके बारे में लिखो. Then you start with transmission of shares takes place due to operation of law, that is shares of a member is automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of a member. Okay, thus transmission of share is an involuntary action. There is only one party, legal heir, who initiates the process of transmission. Okay, then the legal heir or official receiver need not pay any consideration for the shares. Original liability of the member continues in case of transmission. There is no need to submit the instrument of transfer, pay the stamp. ये सारा पैराग्राफ important तो है ही बाय डिफॉल्ट. ऑपरेशन ऑफ लॉ का मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन इन द बॉक्स, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, देन आफ्टर राइटिंग द डिटेल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, स्टूडेंट्स व्हाट यू कैन डू, आप एक छोटा सा कॉलम बना के इस पर्टिकुलर डायग्राम को भी आप दिखा सकते हो. Death of the member to the legal heir of the member, insanity to the guardian of member, insolvency to official receiver appointed by the court. You can just show it in the form of diagram. और एक example जरूर देना. Suppose there is a father who has his shares in a particular X company, आप लिख सकते हो. Okay, due to his sudden death, automatically, see, this is how you have to write. Automatically the shares will be transmitted to his son's name. Okay, or if he has given the nomination, definitely it will be transferred to the nomination's name. ऐसा एग्जाम्पल दो, सो ये पूरी तरीके से आपका 2 मार्क्स का आंसर रेडी हो जाएगा. एंड यू
will definitely get full marks. ठीक है, theory marks में nearer to 2 marks मिल जाता है, if not full marks, but best answer they cannot resist themselves also, है ना. Then second question जो पूछा गया है students, which we have been studying so far again and again, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम पढ़ेंगे, that is bonus issue और bonus share. Yes, इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा देना चाहूंगी. ऑब्वियसली बोनस शेयर क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है, these are the fully paid up shares, it is issued free of cost to whom? To equity shareholders in proportion to their shareholding. ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी. यूजुअली financially sound companies issue bonus shares out of its accumulated distributable profits or reserves. ठीक है, hence as the profit or reserves are capitalized, it is also called as capitalization of profits or reserves. ये आपको लिखना ही पड़ेगा because they have asked you about bonus shares. ठीक है, then there are few provisions which you have to mention and these are very important. जो भी बॉक्स में दिया है उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है. In case if you want to add something because you want to show your answer little bit impressive, you can definitely add. तो आपको पहले provision लिखना पड़ेगा. Following are the provisions related to bonus share. Definitely A, free company can issue bonus shares out of free reserves, securities premium account or capital redemption reserve account, which is very very important. ठीक है. B, company cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation of asset. And what is the revaluation of asset? Value of asset recalculated to find out the current value of asset. ठीक है, this is for your information. Then C part क्या है provision का? You have to include basically all these provisions students. ये जो first A part जो हमने पढ़ा ये आप अपने own words में भी लिख सकते हो. ठीक है, there is nothing like you have to write in the point form or just put A and you can write in the paragraph form also. ठीक है, अच्छा B हो चुका है. C is it also cannot issue bonus shares instead of paying dividend. D, once the announcement for bonus shares is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn. Okay, समझ आ रही है ना? दिस इज वेरी सिंपल. एक बार अनाउंसमेंट हो गया बोनस शेयर्स का बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. बोल नहीं सकते नहीं नहीं अब इरादा बदल गया, हम आपको वापस ले रहे हैं, आप नहीं बोल सकते. देन बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स. डेफिनेटली shareholders cannot renounce or give away their bonus shares to another person. तो ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर्स ने ऐसा नहीं कर सकते. कंपनी ने आपको फ्री ऑफ गिफ्ट दिया है तो आपने निकाल कर किसी और को दे दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते. ठीक है, there is no minimum subscription to be collected. So this is a full fledged और 2 marks क्वेश्चन का आंसर भी आप ये लिख सकते हो इन केस बोनस शेयर्स. Students, first you start with the meaning of bonus shares. Try to little bit in detailing so that it becomes impressive. Okay, हर question maybe it is for 2 marks 4 marks कुछ भी हो, आपको इस तरीके से लिखना है कि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ और सेक्शन ऑफ क्वेश्चन में आप पूरे मार्क्स लेकर निकल लो. ओके, सो दिस इज अबाउट बोनस शेयर्स. दिस इज 2.2. Then the third one is allotment of shares. Students, allotment of shares is a very simple topic. आप इसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए you can just start writing. When the company gives shares to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares. Okay. फिर as per the Supreme Court has defined the allotment as the appropriation out of previously unappropriated capital of the company of certain number of shares to a person. यहाँ पर अप्रोप्रिएट और अनअप्रोप्रिएट का मीनिंग भी दिया है. अप्रोप्रिएट में डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उस डेफिनेशन को. सुप्रीम कोर्ट वाला जो है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स व्हाट? allocating certain number of shares by board of directors out of previously unallocated capital of the company to person who have applied for the shares. आप बोल सकते हो. See, if you want to get maximum points, try to write in the point form students. क्योंकि क्या हो जाता है, कई बार हम पूरा पैराग्राफ लिखते लिखते you we start putting our own things also, it looks very very बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है. तो ऑलवेज ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रॉम द पॉइंट्स. आई एम टू से हाईलाइटिंग द पॉइंट्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट फिल्स द फॉर्म. ये पूरा प्रोसीजर है. अलॉटमेंट में कैसे क्या होता है वो दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सब
fills the form and submits it with application money to the company's bankers. Board of directors approves the acceptance of such applications in the board meeting by passing resolution. This is called as allotment of shares. यहाँ तक आप पूरा allotment का पूरा procedure in few lines आप cover कर रहे हो, ठीक है. फिर रोल आता है थोड़ा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उनके बारे में भी आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा फॉर श्योर. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू द शेयर्स. अब कौन सी कंपनी इशू कर सकती है इन द डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है. तो कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 crores, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट्स न्यू इश्यूज विद इफेक्ट फ्रॉम 10 September 2018, एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब, ठीक है. तो any other company can issue its shares in any form. Also, companies have the freedom to convert its shares into demat form at any point at any point of time. Companies issuing shares in demat form has to comply with the provisions of Depositories Act 96. Now students, I would like to tell you, even though मैंने ये screenshot share किया है, even though I am just telling you, you can just highlight the points and then you write, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पूरा जैसे यहाँ पर दिया है वैसे ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है. I'll show you one technique. And from here, if you can see, the board of directors has the power to allot the shares. ये first 2 points यहाँ तक तो आप लिख ही सकते हो. Then you can say the board of directors have power to allot the shares. ठीक है वहां तक. Then as per under the Companies Act आप बोल सकते हो as per the Companies Act 2013 following companies have to issue the shares in demat account. कंपनीज मेकिंग पब्लिक ऑफर, ये जो है आप बोल सकते हो कंपनीज मेकिंग एन ऑफर ऑफ इन एक्सेस ऑफ मेकिंग एन ऑफर इन एक्सेस ऑफ 10 crores, देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज विथ इफेक्ट फ्रॉम. तो थोड़ा बहुत आप पॉइंट्स निकाल कर भी लिख सकते हो. ओके, बट if you want to frame a sentence, it will be always better because it will have a good impact. And then other classes, such other class और classes इतना पूरा नहीं लिखना चाहते तो ठीक है, you say other classes of companies, ठीक है. then थोड़ा सा ये last line भी बहुत important है. Any company can issue its shares in any form. Companies have the freedom to convert its shares into demat account any point of time. Companies issuing in demat form have to comply with the provisions. Companies issuing shares have to comply with the provisions of the deposit. मतलब ऐसे आप try करो लिखने का. Exactly if you want to write, then you have to by heart it. That is the only option. लेकिन points को याद रख कर उसको elaborate करो. The evaluator, this is what I have experienced. Evaluator यही देखता है कि आपकी नॉलेज क्या है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है, जैसे पेपर पैटर्न में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना. सो दिस विल हेल्प द इवैल्यूएटर आल्सो दैट टू सी दैट दिस पर्सन हैज नॉट बाय हार्टेड, ही हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. तो ऐसे आप लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स. बट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको इधर से ही लिखना है, ठीक है. Then comes ESOES स्कीम. ये जो ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन था उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये जो भी पॉइंट्स दिए ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा. ओके, इट्स वेरी सिंपल बाय द वे. प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट. लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है. नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है? Under this scheme, permanent employees, directors, officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares. कितना सिंपल है. Existing employees, directors और officers को ये चांस मिलता है कि वो परचेज कर सकते हैं इक्विटी शेयर के, इक्विटी शेयर्स, ओके, एट फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. तो ऑब्वियसली ये जो ESOS है ये क्या करता है? इट एनकरेजेस और यू कैन से इट मोटिवेट्स the employees as they feel proud to be the owners of the company for which they are working and the company also benefits, है ना, क्योंकि वो अपना जो अच्छे लोग हैं they retain the good people. ये आपको लिखना है. Provisions you have to write, following are the provisions आप start कर सकते हो. A company may offer the shares directly to the employees through an employee welfare trust. मतलब welfare trust यहाँ पर आपको याद रखना है. You can write a company may offer the shares directly to the employees through welfare trust or through an employee welfare trust. Then the shares are offered at a price lesser than their market price. ये option भी उनको है.
मार्केट प्राइस में जो भी है उससे कम प्राइस में इनको शेयर दिया जाता है। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड फॉर 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड तो ऑलरेडी आपको पता होगा, पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेज हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। मतलब वो पीरियड देते हैं उनको जहां पर वो ये ऑप्शन यूज कर सकता है, ठीक है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। समटाइम्स क्या हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस है वो आपको एक टर्म याद करना पड़ता है। उस टर्म को हाईलाइट करके उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। जैसे वेस्टिंग पीरियड आप याद रख सकते हो, लॉक इन पीरियड आप याद रख सकते हो। सो लॉक इन पीरियड इज अ मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग, ठीक है। उसी के अंदर आपको, नहीं तो लॉक इन पीरियड हो जाएगा, यू हैव टू यूज योर ऑप्शन। शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल एम्प्लॉयज बाय द शेयर्स। डेफिनेटली ये हम सबको पता है। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS, ठीक है। व्हाट इज ESOS, ये याद रखो पहले, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। देन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स इशूड अंडर। मतलब आप गिरवी नहीं रख सकते हो, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। मतलब ऑल टुगेदर उनको सेबी के गाइडलाइंस जो है, रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एज्यूम दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, एंड नाउ आपको थोड़ा सा you are getting that glimpse of how am I supposed to write the answer and what are the highlighted points I have to remember. So that's it in this question. Let us go to the next question, children. 2.5 बहुत सिंपल है, सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में पूछ रही है। यहाँ दिया तो इतना ही है, 2 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी कि थोड़ा शेयर्स के बारे में भी लिखो। ओके, शेयर्स, ओके। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज सरेंडर ऑफ शेयर्स है, तो जब तक आप शेयर्स आपके पास नहीं रहते तो सरेंडर थोड़े ना करते, तो आप स्टार्ट करो। शेयर्स मीन्स इट्स स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। थोड़ा उसको मेक इट लिटिल बिट ऑफ वेटेज दो उसको, देन यू से that voluntary return of shares by the members of the company for cancellation, that is called as surrender, or surrender of share is allowed only if there is no option but to forfeit the shares. जैसे हमने वो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था, है ना, जहाँ पे कॉल करते हैं, पे टू फुल्ली पे, पार्टली पे करना होता है, और बिल्कुल नहीं करते हैं तो क्या होता है, कैंसलेशंस होते हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे सरेंडर ऑफ शेयर इज अलाउड ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू फॉरफिट द शेयर्स। तो जब फॉरफिट मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, देन दे गो फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर्ड। बी केयरफुल, मतलब जो पार्टली ही पेड हुए हैं, उन्होंने पूरा किया ही नहीं, तो वो सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर शेयर्स कैन बी री इशूड इन द सेम वे एज फॉरफिटेड शेयर्स। वॉलंटरीली यहाँ पे क्या हो रहा है, सरेंडर ऑफ शेयर्स मतलब यहाँ पर खुद से मेंबर्स क्या कर रहे, कंपनी को वो अपने शेयर सरेंडर कर रहे फॉर कैंसलेशन। देन सरेंडर शेयर्स कैन बी री इशू भी वो कर सकते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट प्रोवाइड फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स एज पर द रूल्स। सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। डेफिनेटली ना, यहाँ पर आप थोड़ा 2-3 सेंटेंस अपना भी ऐड कर सकते हो। सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल एज एंड व्हेन द मेंबर्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू पुट इन योर ओन वर्ड्स, व्हेनेवर द मेंबर्स देमसेल्फ फील दे वांट टू सरेंडर द शेयर्स, तो इससे सो व्हाट हैपेंस, द कैपिटल or finance in the company reduces and hence companies avoid surrender of shares most of the time. वो encourage करते हैं उनको री-इशू करने के लिए। Okay, now there are some students who will say, मैम 2 मार्क्स का surrender of shares इतना ही दिया है तो इतना ही लिखना है। So because of that I'm trying to tell you, थोड़ा सा अपना भी ऐड करो। Okay, due to certain circumstances, the members are not in the position to continue, so they surrender the shares. But it will have a very bad impact of the company because their capital gets reduced and it becomes difficult for them because they are not aware in future more people will come and buy their shares or subscribe to their shares or not. ऐसा भी आप लिख सकते हो. So that means
ट्राई टू एग्जैजरेट लिटिल बिट, मतलब ऐसे खाली पीली नहीं एग्जैजरेट करना है, विच हैज सेंस यू हैव टू पुट इट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ पॉइंट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ESOS एक ऑप्शन था, तो ये भी एक ऑप्शन ही है। So these are shares issued by company to its directors, employees at a discount or for consideration other than cash, ठीक है। तो यहां पर उनको एट डिस्काउंट दिया जाता है ये शेयर्स, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, लेकिन फॉर सम देयर कंसिडरेशन बट अदर देन कैश। It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profits। तो क्या हो जाता है, जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि yes this is because of the employees, the directors or the people, then definitely वो उनको क्या करते हैं, sweat equity shares देते हैं, so that it is the feeling for them, it's like a consideration, लेकिन which is other than cash for sure। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक परिपशु आप मीनिंग देख सकते हो, इक्वल फुटिंग, विल बी ट्रीटेड एट पार विथ अदर इक्विटी शेयर्स, उनको वही अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। दिस शेयर्स हैव लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, डेफिनेटली 3 साल होते, दे कैन नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 साल तक वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड द कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑब्वियसली मीटिंग होता है शेयर होल्डर के साथ, जहां पर एनुअल जनरल मीटिंग हो सकता है, जहां पर वो ये रेजोल्यूशन पास करते हैं विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो, देन यू कैन जस्ट सर्कल एंड से परिपशु मीन्स इक्वल फुटिंग, वहां पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, सो दैट योर आंसर लुक्स लिटिल लैविश, है ना। जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है वहां पर पेंसिल से थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर सकते हो। देन ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस ना टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और द होल्डर्स ऑफ पर्टिकुलर शेयर्स, ठीक है। तो वहां पर चारों ऑप्शन आप लिखो, फिर स्वेट इक्विटी वहां पर हाईलाइट करो और फिर स्वेट इक्विटी के बारे में लिखना शुरू करो। सो इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन चिल्ड्रन, the way you present and the way you write, that's what matters, and this is how you can score good marks। we always say कि we write exactly how it is there in the textbook और फिर भी हमको इतने कम marks। it is not about how good is your memory, it is about how good and qualitative are your concepts, clarity of concepts, ठीक है। then let us go to the question number, I'm to 7th point, share certificate। students वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, शेयर के बारे में पता है, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पता है, तो उसकी सारे डिटेल्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो पहले आपको स्टार्ट करना है, इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट प्रिमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स, तो ये लिखना ही है आपको। तो फिर क्यों यूज होता है वो भी है। इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एन एविडेंस and not the entries in the register of members। share certificate is very important। कैसे इशू होता है, issued under the common seal of the company, signed by 2 directors duly authorized by the board of directors and the company secretary और authorized person। ये आपको याद करना है, ये by default आपके माइंड में फिक्स करके रखना है आपको। then company has to issue the share certificate to whom? to the allottees as well as transferees on transfer of shares partly और फुल्ली पेड अप शेयर्स के ऊपर भी। कंटेंट्स आपको ऐड करना है यहाँ पे थोड़ा सा, ऑब्वियसली सारे कंटेंट्स लिखना है। व्हाट आर द कंटेंट्स? ऑब्वियसली नेम ऑफ द कंपनी और CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर, पूरा नेम ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कॉमन से लिए पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देन देयर इज टाइम एंड टू होम। ये टेबल भी अगर आप याद कर सकते हो तो इट इज वेल एंड गुड। बिलो दैट जो टेबल है उसको याद रखने की कोई मतलब नॉट दैट मच, बट आई थिंक दे हैव गिवन फॉर लिस्टेड कंपनीज। इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट। देन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है ये आप ऐड करो। ये आपको समझ लेना है कि अगर सर्टिफिकेट हैज ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, टोन, इज सरेंडर्ड टू द कंपनी, ऑब्वियसली it has to be proved by the holder the original share certificate is lost। ऐसे थोड़े ना कोई डुप्लीकेट निकाल के दे देगा, आपको वहां पर प्रूव करना पड़ेगा। in case of loss of share certificate, company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of the share certificate and ask the finder if any to return it
to the company. If company does not get any response from the public within the specified time, then company can issue a duplicate share certificate. Students, this is very simple. ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में डालते हैं कि किसी को भी मिला है तो काइंडली रिटर्न इट बैक, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो देन दे विल इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. ओके, और लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट हियर. Duplicate share certificate should be issued within how many months? Within 3 months from the date of the company issues it, only to registered shareholders. और उसके ऊपर लिखा जाएगा bold में that it is a duplicate share certificate and the company has to pay it if it has issued duplicate with intent to defraud. कंपनी को पेनल्टी भी लग सकती है अगर उन्होंने चीट करने के लिए ये किया हुआ है. सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट शेयर सर्टिफिकेट का, देन ओनली यू कैन राइट दिस आंसर. अगर ये पूरी चीज आप अपने ओन वर्ड्स में और एग्जैक्टली लिटिल बिट हियर एंड देयर आप ऐसे लिखोगे तो 2 marks आर इन योर अकाउंट, यू कैन सी. ठीक है, देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Authorized or nominal or registered capital. Students, at least this topic when I was explaining you all in the previous videos regarding kinds of share capital, तो वहां पर authorized capital और nominal और registered capital हमने already पढ़ा है. तो what is it? Authorized capital is a maximum capital authorized by memorandum of association that company can raise by issuing shares. ये आपको लिखना ही है. It is also called as registered capital, mentioned in the capital clause of the memorandum is very important on students of association, and the company pays stamp duty on the amount at the time of incorporation and is calculated considering the need of the capital at present and future. Or authorized capital is also called as nominal capital. Company never issues entire authorized capital to the people. ठीक है, ये पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा और ये एग्जाम्पल जो दिया है ये डेफिनेटली आप लिखो. और ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल जब आप अटेम्प्ट करते हो तो काइंड्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल जो हमने पढ़ा था, जैसे वो एक ग्राफ था, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के नीचे वाला एक पार्ट और एक सेक्शन आप यहाँ पर ड्रॉ करो. सो दैट एंड देन आफ्टर ड्रॉइंग लिटिल बिट देन यू सर्कल द ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड टेल देम कि दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. तो इसका आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. ठीक है, अबाउट द आंसर. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिखो दैट एम लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल. आप कोई दूसरा नाम लिख सकते हो बिकॉज लगेगा कि आपने रट्टा नहीं मारा है. यू कैन राइट अमर लिमिटेड कंपनी हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs which can be divided into 1 lakh equity shares face value of 10 each. या आप उसको 20 lakhs कर दो, 20 rupees each कर दो. ट्राई टू play with the figures and try to put good figures. exactly मत लिखो. If you are interested, you can write. यहाँ पर divided into 2 lakh लिखना पड़ेगा अगर 20 lakh का authorized capital है तो. Then a company can increase its authorized capital by altering its memorandum of association. This is how you can attempt this answer. ठीक है. Forfeiture of shares. Students, by now we are aware कि shares को forfeit क्यों किया जाता है ना. तो आप पूरी theory लिख सकते हो. अदरवाइज इफ यू वांट मी टू टेल यू देन अगेन यहाँ पर वो आंसर आपको मिलेगा. इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर जरूर लिखना. इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स कैन फॉरफिट, दैट इज टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर. दिस इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. ये अपने ओन वर्ड में कैसे लिखना है. Suppose if the shareholder fails to pay the calls within the specified period of time, the board of directors authorized by the articles can take away or forfeit the shares which can be partly or which are only partly paid up shares which can be forfeited. This entire procedure is known as forfeiture of shares. ऐसे भी आप लिख सकते हो. It is not that exactly how it is given you have to write. ठीक है. Then board can forfeit shares only in the interest of the company. Obviously ये important है. Company has to send a notice of forfeiture to the concerned member. A notice must be given within how many days? 14 days period from the date of service of notice to make the payment along with interest. Then forfeiture shares क्या reissue हो सकते हैं? Yes, company can issue or reissue forfeited shares as these shares belong to the company. Reissue of forfeited shares is not the same as allotment of shares. On reissue, if company gets more money than the calls which are due, then excess amount is paid to the member.
The board can cancel forfeiture under certain circumstances provided member requests the board before it is reused. तो ये पूरा थ्योरी आपको लिखना ही पड़ेगा इन द पॉइंट फॉर्म. प्रेजेंटेड वेरी वेल. इफेक्ट्स ऑफ forfeiture भी थोड़ा ऐड कर लो, लेकिन इंक्रीज योर राइटिंग स्किल. जब आप इंक्रीज करोगे तभी आप मोर पॉइंट्स इंक्लूड कर पाओगे. इफ यू राइटिंग लिटिल बिट स्लोअर एंड यू वांट टू पुट ऑल द पॉइंट्स, आप सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही रह जाओगे, बाकी सब कब करोगे. सो यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस चिल्ड्रन. इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड. ओके. Effects of forfeiture: cessation of membership, member ceases to be the member of a company, loses all membership right, and his name is removed from the register of members. ये लिखो. Liability of member क्या है? Liable for unpaid calls even after forfeiture of shares. It ceases only when the company reissues the forfeited shares. Liquidation of company goes in for liquidation within 1 year of forfeiture of shares. The member whose shares have been forfeited is liable to pay the calls as past member. So ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी and highlight the points on which you are focusing and giving the explanation. और ये जो लास्ट पॉइंट हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं वो है पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स. भी मैंने ज्वाइन कर लिया, दोनों साथ में थे. तो डेफिनेटली चिल्ड्रन हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. पेड अप कैपिटल इज व्हाट? The total amount of money actually paid by the shareholder when the company has called up or demanded to pay. जब कंपनी उनको कॉल करके बोलती है कि आपको पे करना है, तो जब वो शेयर होल्डर अमाउंट, टोटल अमाउंट एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी पे करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल. ठीक है. द अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, तो उसको क्या कहेंगे? कॉल इन एरियर्स और अनपेड. तो एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे द कॉल्स as and when company demands. Failure to pay will lead to forfeiture of shares. It's very clear. और ये एग्जाम्पल जरूर देना. ये एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, चेकआउट इन द एसपी प्लेलिस्ट. वहां पर ये वीडियो जरूर है. चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो है शायद. एग्जाम्पल: M Limited company has made a call of 5 per share. So if all the shareholder have paid the calls, then the paid up capital will be 30,000 shares there, right? So multiply by 5, it will give 1,50,000. But if for example 40,000 में से 30,000 पे गए किए हुए हैं, 10,000 नहीं पे किए गए हैं, so 10,000 into 5 which will give you definitely are not paid, then the paid up capital will be 1 lakh. That is 10,000 into 10,000 into 5, that is 50,000, right? And then equity share calls are not paid, then the paid up capital will be 1 lakh. मतलब 20,000 equity shares into 5. So जो कॉल इन एरियर से विच आर नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, सो एंटायरली ये 10 लाख का ही है. उन्होंने जितना सब्सक्रिप्शन, मतलब इट वाज 4 लाख 6 लाख वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उस हिसाब से दिया गया है ये एग्जांपल. इफ यू सी द ऑथोराइज कैपिटल से पूरा सेक्शन देखेंगे तो हमको ये उनका समझ आ जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली. ठीक है. तो जैसे जैसे सब्सक्राइब होते जा रहे हैं, कॉल्ड अनकॉल्ड रिजर्व्ड घटते घटते वो यहां तक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. सो दिस इज अबाउट पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर चिल्ड्रन. आई थिंक ये जो 10 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप इनको इस तरीके से टैकल करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच. If these 10 concepts are very clear to you, if it have really helped you to understand, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए भी. You can just put on the video and revise it so that how many times you revise it, आप प्रिपेयर करो, ये वीडियो देखो. मैं आई एम टॉकिंग ऑन द अदर साइड, you also start, you join me in explanation. Definitely it will remember and you will remember for a longer period of time. So on that good note, thank you so much. If the concept is definitely, I hope so, made your concepts, I mean to say, if the explanation have really helped you, your concepts are clear, kindly like, subscribe and share. Share children, kindly share. I'll focus on share and likes also, so that, and subscribe also, because more and more revision and mock test तो आपको भर भर के मिलने वाले हैं, क्योंकि it will help you to remember and solve it and get the रिजल्ट ऑल्सो. मतलब आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं. और इतना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद आप तो मतलब यू विल बी परफेक्ट इन दिस, इन ऑल द सब्जेक्ट्स व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ.
So till then, that's it in this video, children. Thank you so much. Thank you.